Download the Z5 app now. Ma'am, recently a lot of going on Bollywood Me Too campaign. What is your opinion on that? Yeah, Prominent face of the television. I think it takes immense courage to come out and speak about experiences that have horrified you, that are harassing you in some corner of your mind. To speak about it, to speak about such things take immense courage, and also it's very relieving once you talk about it and it's out in the open and people know that thing that you had been holding back in your mind. You feel relieved, and I totally support Me Too movement. I don't know why I just cannot agree and understand people who just brush it off like ye kya chal raha hai, because I want people to know that this is very real. Such things happen in this industry or anywhere else, all the industries. Women are sometimes mistreated, mishandled, manhandled, uh, and I'm very glad this movement is happening, and it is definitely going to reduce such episodes, such instances to a huge extent. I also have something to say in the Me Too movement, but I'll say it on some other day to somebody if they approach me. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू श्रद्धा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? Not right now. I want to talk about it because right now we're it will just distract everyone from the shadi ka mahal. But definitely, I have a very stark experience that always stayed in my head, and I would it would also help me if I talk about it, but not right now. Not right now, because right now we're here to enjoy the shadi and participate. You know in what it. I feel, Shraddha, that we are so blessed कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई है. Right. और मेरे साथ तो हो ही नहीं सकती बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही मुँह फटूँ. उसके साथ हो जाती है दूसरे बंदे के. Right. I think I have to. Like I said, it takes immense courage. I don't know if I have the courage right now to speak of certain people. Of course, they are big names, so I don't want to talk about it right now. Some other time. But will you share because it's a very important as your prominent face of the television. It's important, and I will do a write-up on this. I will definitely express what I feel about it. And like I'm saying right now in front of all of you all, that I totally support the Me Too movement. And yes, I think I will also speak on it specifically, but on some other occasion. यार आई बिलीव कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. यस एंड मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली दे शुड बी पनिश फॉर इट. एंड लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि कोई गलत या कोई सही आदमी अंदर फायदा ना उठाए किसी भी चीज़ का, Me Too movement का. चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो. इट्स अ ब्रिलियंट मोमेंट एंड आई रियली थिंक दैट वी आर डेफिनेटली इन सपोर्ट ऑफ दिस. बट आई ऑल्सो फील कि इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए. यू नो नॉट सी बहुत जेन्युइन केसेस हैं, पर कोई एक आधा हर कोई तो अच्छा नहीं होता. सो आई जस्ट फील दैट यू नो इट शुड बी रियली इन्वेस्टिगेटेड एंड देन वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट. एब्सोल्युटली. I think it is a very necessary movement, and I hope every injustice, every culprit is punished, and I hope more courage is given to all victims. And thank you for showing so much courage for all of us, because if we make the world safe, it's for all of us. Irrespective of our gender, we're making a healthy environment for all of us, and a revolution is like this is absolutely necessary. And all of us are not equal till all of us are equal, not just women. Obviously women के साथ सबसे ज़्यादा होता है, nobody can deny that fact, but there's so much inequality generally, violence against trans people or homosexual people. We have to beat all that and create a really nice and healthy world where everybody is safe and everybody is happy. इट्स सी हैशटैग मी टू एक
अच्छा रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। बहुत सी लड़कियां जो आज तक बोलती नहीं थी, उनके साथ जो गलत हुआ है, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला है कि हाँ, हमारी भी सुनने वाला कोई है। बट साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो शायद चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट दोज पीपल कि अगर आपके साथ नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो आप उस तरीके के गलत मैसेजेस मत दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, दैट विल रब इट इन द रॉन्ग वे, जिससे आपके ऊपर ही गलत पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ आप उसी टाइम रिएक्ट करो, उसी टाइम उस इंसान को अपनी गलती का एहसास दिलाओ। एंड यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू लिव योर लाइफ, वर्क प्रोफेशनली और डू एवरीथिंग ऑन योर ओन कंडीशंस। कोई आपके ऊपर कोई दबाव ना डाल सके, आप कभी किसी प्रेशर में ना करें। और हर औरत इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ये कर सके। हमें किसी हैशटैग की रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम उसी पल वहीं उसका जवाब दे सकते हैं और उस इंसान को अपनी गलती महसूस करा सकते हैं। अच्छा, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपने कभी ऐसी चीज़ सुनी है किसी से या फिर कोई फ्रेंड? जी, मैंने काफ़ी कुछ सुना है और मैं उनको भी यही बोलती हूँ दैट आप कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप कहीं पे हैं, किसी से बात कर रही हैं, कहीं काम के लिए गई हैं, तो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। और कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, कोई डेरोगेटरी बात करता है, आप उसी वक्त उसे जवाब दीजिए, उसे चुप कराइए, अपनी गलती का एहसास कराइए। मेरी लास्ट क्वेश्चन, एक केस 19 साल बाद निकला और एक 10 साल बाद, तो ये अभी भी चुप्पी किस बात की है? मतलब अभी और 20 साल रखना है उस बात को छुपा करके, या और 50 साल बाद बोलना है? मतलब चुप्पी नहीं है, शायद उस वक्त क्या होता है कि एक लड़की सहम जाती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम सबकी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी में हमेशा से ऐसा होता है कि लड़कियों को बोला जाता है नहीं ज़्यादा मत बोलिए। ऊपर से हमें डर होता है कि कोई हमारा साथ देगा कि नहीं और उसको कोई रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं। अब वो रेवोल्यूशन आ गया है जहाँ लड़कियों को पता चला है कि हम बोल सकते हैं, हम रिएक्ट कर सकते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए लोग हैं। सो पीपल आर कमिंग एंड इट्स अ ग्रेट थिंग विच इज़ हैपनिंग, बट आई रिस्पेक्ट पीपल टू रिस्पेक्ट इट एंड बी जेन्युइन। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट समथिंग जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट अभी हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। एंड नाउ आई थिंक एवरी वुमन हैज़ अ स्वॉर्ड इन हर हैंड, सो शी कैन फाइट for her rights and for her self-respect. So I think any woman suffering from harassment or anything like that, she should come forward, and I think this is the best thing happened here. I'm disheartened है। मैं बहुत पेन्ड होता हूँ जब मैं ये सब देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एंड आई होप कि कुछ एक्शन लिया जाए और कुछ हो, ये ना हो कि फिर से बातें निकलें और रुक जाएं। आई थिंक सम एक्शन शुड बी टेकन नाउ, इट्स हाई टाइम। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मी टू मूवमेंट जो शुरू हुआ है, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि लोगों का ये कहना है कि लोग 10 साल 15 साल के बाद क्यों बोल रहे हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि आसान नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो ये हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और थिएटर के क्षेत्र में ही नहीं होता है, ये हर जगह होता है। चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो मेडिसिन वर्ल्ड हो, टीचर को प्रमोशन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो औरतों ने बोलना शुरू किया है, आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है। भले ही हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो, और हॉलीवुड में इसका बहुत अच्छा असर देखा गया कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, हार्वी वाइनस्टाइन को उन्होंने जेल भी कर दी, केविन स्पेसी इतना ब्रिलियंट एक्टर जो उसका हाउस ऑफ कार्ड्स इतना सुपीरियर शो जा रहा था पॉपुलर, उसको उससे निकाल दिया गया। तो ऐसा तो इतना बड़ा तो नहीं होने वाला है, पर थोड़ा बहुत जैसे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आमिर खान ने वॉकड आउट ऑफ सुभाष कपूर फिल्म, या अक्षय कुमार ने बोला है कि मैं साजिद जी के साथ काम नहीं करूँगा, एंड फराह खान उनकी बहन होते हुए भी उन्होंने कहा है। सो दैट इज़ रियली एडमरेबल। तो इसका मतलब कुछ असर हो रहा है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इतने सालों के बाद क्यों कह रहे हैं, आई सेड कभी तो बोले हैं, चुप रहने से अच्छा है कभी तो बोले हैं। एंड वी ऑल मस्ट मेक आवर कंट्री सेफर प्लेस टू वर्क विद। और अगर ऐसी बातें आएंगी तो कम से कम आदमियों के मन में डर तो जागेगा कि कल हम ऐसा नहीं करेंगे, कि अगर हम कुछ करेंगे तो ये हो सकता है हमारे खिलाफ बोले तो हमारी बदनामी होगी। बल्कि जो लोग मीटू के खिलाफ है उनसे मैं कहना चाहूँगी शांत हो जाओ। जो लोग औरतें बोल रही हैं उनको इनकरेज करो, डोंट लुक डाउन ऑन देम। जितने भी अभिनेत्री सर
है, फिर कुछ भी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो आप मीडिया से शेयर करना चाहते हैं? नो जो ये मेरे को जब पहले पता चला आलोकनाथ जी के बारे में, ही एज यू सेड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो NSD मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो मैं उनको बहुत सालों से, करीब 30 साल से जानती हूँ। उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं, परदेश, कभी खुशी कभी गम, और बहुत सारे सीरियल्स करे हैं। और जब मैंने ये विनीता का पोस्ट पढ़ा तो मैं एकदम हिल गई, क्योंकि बाद में आई एडेड कि संस्कार, आई सेड ओह शिट इट्स आलोकनाथ। तो मैंने कहा आई मस्ट बी विद दिस वुमन, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, भले ही वो 13 साल या 15 साल के बाद बोली, बट आई एम विथ हर। एनी वुमन जिसके हु इज़ अगेंस्ट रॉन्ग। एंड मैंने बल्कि शेयर भी किया, मुझे कल ही याद आया एक हादसा कि जब मैं NSD में पढ़ रही थी, तब आलोकनाथ जी ड्रंकन स्टेट में मेरे कमरे में भी आ गए थे। मैं तब नई देहरादून से आई थी, तो मेरे लिए भी वो बड़ा भयानक सा वाक़या था, और मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस में अंदर कहीं दबा दिया था, और मैं समझ नहीं पाई। मैं पोलाइट हो रही, क्योंकि वो मेरे 3 साल सीनियर थे। मैं बोली सर आई वांट टू स्टडी, कल मेरा प्रेजेंटेशन या कुछ, बट ही रिफ्यूज टू गो। आई थिंक दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। फिर वो तो शुक्र है कि शोर वोर, मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ जैसे विनीता, मैंने शोर वोर मचाया तो उनको बड़ी मुश्किल से बाहर खदेड़ा गया। बट ये तो सब विदित था कि ही इज़ गॉट दैट स्प्लिट पर्सनालिटी, कि वो वैसे तो बहुत बढ़िया इंसान रहते हैं, लेकिन जहाँ शराब के इन्फ्लुएंस में ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी। बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज़, दैट इज़ नो एक्सक्यूज़, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। आई थिंक बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है, एंड आई वुड ओनली लाइक टू से वन थिंग कि अब एटलीस्ट लोग थोड़े हेजिटेंट रहेंगे, जो बहुत खुल्लम खुल्ला या बिना डरे कुछ करते थे, अब एटलीस्ट थोड़े से हेजिटेंट रहेंगे, तो ये चीज़ में बहुत फ़ायदा है। आपने क्वेश्चन तो पूछा, आपका ध्यान कहीं और था। क्या बोला मैंने? क्या बोला? अच्छा, आज एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको लगता है कि टेलीविजन में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन पे लगाम लगाने की ज़रूरत है? आई एम श्योर होंगे यार, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो अभी तक नहीं रहा है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, बट आई एम श्योर होंगे, बहुत होंगे। मतलब आई थिंक मैं सिर्फ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई वांट टू से थैंक यू, बिकॉज जब ऐसा कोई जब भी कोई एक क्राइसिस आप देखते हैं या कोई ऐसी इस तरीके की घटना आप देखते हैं, तो आप सबसे पहले आपका जो ध्यान होता है वो जाता है उन लोगों पे जो आपके बेहद करीब हैं। तो मेरी अपनी पत्नी जो है इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, और इस तरीके के अगर प्रेडेटर्स इस इंडस्ट्री में हैं, और इस तरीके का अगर प्रपोजल कभी उसके सामने आया होता या इस तरीके की हरकत कोई उसके सामने हुई होती, सरगुन के सामने, आई वुड हैव ऑल्सो ब्लोन माई लिड। मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता, गुस्से से पागल हो जाता मैं। तो मैं बहुत फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वुमन हु स्टूड अप, बिकॉज साथ साथ आपने पूरे बॉलीवुड का शुद्धिकरण कर दिया, एंड द इंडस्ट्री इज़ सेफर फॉर विमेन दैन इट हैज़ एवर बीन। बस एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री को आप थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाइए, और इस इंडस्ट्री को दोनों जेंडर्स के लिए सेव कर दीजिए, बिकॉज ऑल द प्रेडेटर्स आर नॉट स्ट्रेट मैन। सो जस्ट रिमेंबर दैट ना, क्योंकि ये मूवमेंट अब शुरू हो गई, तो लेट्स क्लेंज इट वंस एंड फॉर ऑल। या थैंक यू। Download the Z5 app now.